very quickly begin. Good evening to everyone. And I know a lot of people have not joined in, but slowly, I'm sure they will with the situation that which is happening outside right now in Delhi and all. So some places we are facing these problems, but I think more or less all the places have opened up. So I'm sure they will join in subsequently. Is there still traffic jam? Full start तो हो जाए. So I'm not going to wish everyone, Mr. Bhamji, can I request you to please mute? अभी भी आप open. वैसे मुझे बहुत interesting लगता है. I wish I could just keep that mic open and keep seeing your nokjhok and what questions you're asking. But just to give you that privacy, I must, tell you that आपका mic खुला हुआ है. So good evening to everyone and a very warm welcome to Mo TV. Today again we have a wonderful special session with the spiritual and motivational community, which is being led by Shashi ji this time and with her whole team. And I know she's been a little chary about the internet connection and everything, and how things will go. But I'm sure it'll all be going pretty well as people just try and log in. I'm sure they will get into it. So to begin with today's session, I will just hand over to you, Shashi ji, after this. Okay, ji. When you're going through life's valleys and you think there is no way out, you are not the first to feel this way. There is hope without a doubt. So every individual has his own definition of spirituality. For some, it's just doing good deeds. And for others, it's surrendering their whole life in search of its meaning. कोई भी तरीका हो, कोई भी सोच या समझ. The truth is that when you get that sense of connection with something bigger than yourself, that's where you realize you are with the atmosphere you live in. It's about the atmosphere you create within yourself. Whatever motivates life in the right direction is spirituality. So there is no life like this where seasons come and go. The choice is yours to live this life with purpose, heart, and soul. So Shashi ji, with this, I hand over to you for today's session. Okay. Thank you, Rituji, for giving the members of the IMOA Elder Care Group to share our experiences on this prestigious platform. I want to say one thing, that post-retirement is the perfect time to reinvent and to reimagine yourself. And IMOA Elder Care has provided perfect solutions for all such problems. I, on behalf of all the members of the IMOA Elder Care, thank this organization for being a part of our lives. Now, to begin with our interactive session of Spiritual and Motivational Club, the topic that we have selected today is on gratitude. All the speakers will put forth what their concept of gratitude is, or what do they think gratitude in its true sense means. To begin with, I will say that the Lord that grants us life is present in all the things, whether they are big or small, they are good or bad, past or present. And gratitude means expressing our thankfulness and appreciation for all those things that He has given us, irrespective of any circumstances. People who practice gratitude experience more positive emotions. They feel more alive and express more kindness and compassion in their day-to-day lives. The teachings of the saints indicate that the remembrance of the Lord is to our own interest and benefit. करो केवल अरदास इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम उसके शुक्रगुजार हैं कि हमें उसने जो कुछ दिया है वो बहुत कम लोगों के नसीब में है. We owe our gratitude to the Almighty for putting us on the right path, giving us human form, good friends, good health, and for giving these
for giving us purpose and direction to our life. You see, he who knows who is the giver knows best for what is good for us and when what should be given. In life, there will always be people who will try to prove us wrong, but we must always remember to thank them for making us so strong. Challenges will be there, but remember, they become the pillars of our strength. एक शेर फरमाया है, हम तो महफूज हुए दाता सदा तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ पाया, क्या मांगू फरियाद में, तू ही तो समझता दिल को मेरे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है मेरा, तू ही मेरी ताकत है, तू ही दिल में सबसे पहले, बाकी सब कोई बाद में, हम तो सदा महफूज हुए दाता भगवान तेरी याद में. Now, even for the globally challenging year 2020, where there was a gloom in the whole world, we should remain grateful for those unexpected gifts given to us by the Almighty. Once the government initiated the lockdown, He gave us the chance to connect with our inner selves. And we could not go out to meet our relatives and friends. We could sit alone and sit in His remembrance. The digital technology taught us that distance did not matter. Things that were unattended for the limitless time became the focus of our attention. For example, home, children, health issues, pursuing our hobbies. The grace of all merciful divine on small human beings is so great that words run short if we sit to express what all things He has done for us. A devotee once asked God, well, what is the impact of adopting this approach to life? We'll be surprised. The reply was, we go through life with equanimity. Rather than resisting, we accept and adjust to the ups and downs as we face them gracefully and cheerfully. Seeing them as the will of the Lord gives us the positive attitude. And this attitude gives us the determination to persevere and make life more meaningful. Our greatest return gift to God is when we spend our life in His remembrance by showing our gratitude even for those smallest blessings that have been won with our prayers and won with thanks. मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तुम्ही ने जीने के काबिल बनाया, मुझे सहारा बस तेरी ही जिंदगी बंदगी का, जिस पर गुजारा है मेरी जिंदगी का. So this was a short introduction to our today's session of Motivational and Spiritual Club. And before I proceed, I would just call upon my first participant to give his view on what gratitude really means. Let me first introduce Mr. Dev Kumar Bansal, who's a very well-read, knowledgeable, can talk on a variety of subjects and has a very deep knowledge of things. Today, he's going to tell us what gratitude means with a scientific meaning to it. So over to you, Mr. Bansal, Dev Kumar Bansal. आप अपने आप को on mute. Please unmute yourself. Thank you. Thank you very much, Shashi ji. Today's topic is gratitude. देखिए, इस दुनिया में हर आदमी एक चीज को ढूंढ रहा है, बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा है. उसका हर काम, हर एक्टिविटी उसी चीज के पीछे डिवोटेड है. आप भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, वो भी ढूंढ रहा है, वो भी ढूंढ रहा है, सब ढूंढ रहे हैं. और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है हैप्पीनेस. हर आदमी हैप्पीनेस ढूंढ रहा है. हम सब जानते हैं कि हैप्पीनेस मटेरियल थिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती. हम बहुत सारे लोगों को हमको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया जहाँ की सब चीज़ें हैं, मगर वो फिर भी हैप्पी नहीं है. और ऐसे भी लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, खाने का पता नहीं है, मगर फिर भी बहुत हैप्पी हैं. मतलब है कि हैप्पीनेस जो है
वो मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड नहीं करती। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। माइंड के ऊपर डिपेंड करती है, माइंड की ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है, माइंड किस तरह से काम करता है उस पर डिपेंड करता है। हैप्पीनेस इज ए वे ऑफ लिविंग। और अगर पूछा जाए क्या मैं अपने माइंड को हैप्पीनेस के लिए ट्रेन कर सकता हूं, तो साइंस का जवाब है हाँ, आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि आप हैप्पी रहें। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप हैप्पीनेस पा सकते हैं। हैप्पीनेस पाने का बहुत कारगर तरीका है, बहुत इफेक्टिव तरीका है। सवाल पैदा होता है कि ग्रेटिट्यूड से हैप्पीनेस कैसे मिलती है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आप ऊपर वाले से कहते हैं, खुदा से कहते हैं, किसी और साथी से कहते हैं कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको ये भी दिया, ये भी दिया, ये चीज़ भी दी, ये भी बख्शा, इतना कुछ बख्शा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप भगवान से कहते हैं कि इस चीज़ का शुक्रिया, तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है इस बात के ऊपर कि उसने दिया क्या है। जो चीज़ें आपके पास हैं उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। यू फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एवरीथिंग। आपको गिलास आधा भरा हुआ ही नजर आता है, खाली नजर नहीं आता है आधा, क्योंकि आपने थैंक यू करना है, आपने भगवान को शुक्राना करना है, आपने दूसरे आदमी को शुक्राना करना है, तो आपको जो चीज़ पॉजिटिव है उसी के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और अगर आपकी ग्रेटिट्यूड की आदत है तो पॉजिटिविटी भी आपकी आदत बन जाएगी, आप नेगेटिविटी भूल जाएंगे। और पॉजिटिविटी ब्रिंग्स, ऑफ कोर्स ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। प्रोफेसर साहब आए क्लास के अंदर, आकर के कहते हैं आज मैं टेस्ट लूँगा, आपको एक पेपर दे रहा हूँ, उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा है उसको बयान करिए अपने आंसर शीट में। पेपर में कुछ भी नहीं लिखा था, खाली कागज था, सिर्फ कोने के ऊपर एक छोटी सी काली बिंदी बनी। पोटैटो लाइट वो 5-5 रुपए वाले पैकेट आते हैं ना हल्दीराम। Please mute himself, Devinder ji. I'm muting. Thank you. Sorry for the interruption, Dev ji. उस कागज पर कुछ नहीं लिखा था, सफेद कागज था, उसके ऊपर नुक्कड़ के ऊपर एक काली बिंदी बनी हुई थी। जब प्रोफेसर ने आंसर शीट्स देखे तो उसने पाया कि हर एक आदमी ने उस काली बिंदी को ही बयान किया हुआ है, कहाँ पर है, कितनी बड़ी है, कौन से कोने में है, कितना काला रंग है। मतलब है कि हम सब लोगों का एटीट्यूड नॉर्मली यही होता है, हम इतनी सारी सफ़ेद चीज़ें हैं उनको नहीं देखते हैं, कोने में एक छोटी सी काली बिंदी है, फोकस उसी के ऊपर है कि ये काली बिंदी क्यों है। ग्रेटिट्यूड आपको सिखाता है वो सब सफ़ेद चीज़ों को देखने को, उसका धन्यवाद करने के लिए आपको वो देखना ही पड़ेगा। अगर आप धन्यवाद करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सफ़ेद चीज़ें क्या हैं आपके पास में। जब आप कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, आपका इस चीज़ का शुक्रिया, इस चीज़ का शुक्रिया, इस चीज़ का शुक्रिया, तो यू गेट ए सेंस ऑफ अबंडेंस कि देखिए मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अबंडेंस जब आपको, यू गेट ए सेंस ऑफ अबंडेंस, यू हैव ए टेंडेंसी टू शेयर दैट अबंडेंस। आपको शेयर करने में दिक्कत नहीं होती है क्योंकि आपके पास बहुत है, और जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे आदमी को भी खुशी मिलती है। और जब वो आपको थैंक यू कहता है, जब वो आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, तो आपको फिर दोबारा से खुशी मिलती है। तो दोनों प्रोसेसेस के अंदर यू आर गेटिंग हैप्पीनेस। If you are practicing, if everybody is practicing gratitude, you are increasing the happiness content of the whole world and neutralizing the negativity existing in the world.
आप कहेंगे कि डिक्शनरी में मैंने देखा कि ग्रेटिट्यूड का क्या मीनिंग होता है। उसमें लिखा था थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस। थैंक यू तो आप कहेंगे मैं थैंक यू तो बहुत करता हूँ, वो जब मेरे लिए दरवाजा खोलता है तब भी थैंक यू करता हूँ, जब वो मेरे को नीचे से चीज़ उठा के देता है तब भी थैंक यू करता हूँ, जब वो मेरे को सेल्स गर्ल रसीद बना के देती है तब भी थैंक यू करता हूँ। मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। समझने की बात यह है कि थैंक यू भी दो तरह के होते हैं, एक तो सोशल थैंक यू और एक ग्रेटिट्यूड वाला थैंक यू। सोशल थैंक यू जो होता है वो सिर्फ उसने कुछ किया, उसके इमीडिएटली एक्शन के इमीडिएटली जब आपको बेनिफिट मिला उसके इमीडिएटली बाद आप कह देते हैं थैंक यू, और कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछूं आज सवेरे से कितनी दफ़ा थैंक यू कहा तो आपको याद भी नहीं होगा, हालांकि आपने बहुत दफ़ा थैंक यू कहा होगा। जबकि ग्रेटिट्यूड वाला जो थैंक यू होता है उसके अंदर फीलिंग होती है, एक्शन कोई हो चाहे ना हो, मन में से डीपली एक फीलिंग आती है जो कि बहुत देर तक एग्जिस्ट करती है। कभी कभी तो सारी जिंदगी एग्जिस्ट करती है कि भैया उसने मेरे को, उन डॉक्टर साहब ने मेरी बेटी का ऑपरेशन किया था, मेरी बेटी बच गई। वो जिंदगी भर तक उसको याद करता है, जिंदगी भर उसका ग्रेटिट्यूड बताता है। और ये नहीं कि जब एक्शन हुआ तभी ग्रेटिट्यूड आता है। ग्रेटिट्यूड कैन बी एट ए लेटर डेट ऑल्सो, किसी भी टाइम हो सकता है, एक्शन कभी भी हुआ हो। मगर ग्रेटिट्यूड सारांश ये है, बेसिकली ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि आपके अंदर से फीलिंग आए कि यस मैं शुक्रगुजार हूँ। बाहर से कह देना थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गॉड, वो दैट इज नॉट बेसिकली ग्रेटिट्यूड। टू गेट द रियल इफेक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड it has to come from your inner heart. I will talk about the various things for which you could be thankful. आप थैंक यू किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? ऊपर वाले को, अपने साथियों को, अपने काम करने वालों को, बहुत लंबी लिस्ट है उसके लिए जिसके लिए आप थैंक यू कर सकते हैं। I'll quickly go through that. It could be your health, जैसे भी हेल्थ है, अभी बिल्कुल ठीक नहीं है मगर फिर भी बहुत ठीक है। अभी जो कुछ भी है उसकी उसी के लिए थैंक यू करना है आपको, क्योंकि इससे खराब भी हो सकती थी। अपने से हमेशा थोड़ा नीचे देखेंगे, जितने पैसे हैं आपके बैंक में, ठीक है जी बहुत कम है पैसे, इससे भी कम हो सकते थे, जितने हैं उसके लिए थैंक यू करिए। आप अपने दोस्तों के लिए धन्यवाद करिए। आप अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतने ही कंट्रीज हैं जहाँ पर आप अपना धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप अपना जो चाहे जिस मर्जी भगवान की पूजा कर सकते हैं, जैसे चाहे मर्जी कर सकते हैं। थैंक यू का विषय है। अपने पेरेंट्स को थैंक यू करिए जिन्होंने आपको इस दुनिया में लेकर के आए। अपने साथी का थैंक यू करिए, पार्टनर का करिए, स्पाउस का करिए जो आपका साथ दे रहा है सारे एक्शंस के अंदर। आपके पेट्स हैं, आपको एजुकेशन मिली उस चीज़ का थैंक यू करिए। आपके पास एक घर है उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको शुद्ध हवा मिल रही है, आप सांस ले पा रहे हैं। अस्पताल के अंदर आपको अगर 3 दिन तक वेंटिलेटर लगता है तो उसके लिए 10 लाख का बिल आ जाता है, और ऊपर वाले ने आपको 80-100 साल दिए हैं सांस। देखिए कितनी कीमत हो सकती है उसकी। सोचिए वो आपने 3 दिन तक अस्पताल में सांस लिया डॉक्टर की वेंटिलेटर से, तो उसके लिए 10-15 लाख रुपए का बिल बन जाता है। और भगवान ने कितने सांस लिए आपको, आपने कभी बिल चुकाया उसका? आपको सोने को बेड मिलता है, आपके पास बिजली है, मॉडर्न मेडिसिन हैं आपके पास में, जो आज से 50 साल 20 साल पहले जो मेडिसिन मिलती ही नहीं थी, लोग उसी बीमारी से मर जाते थे, आप आसानी से उसका इलाज करवा पाते हैं आज। You had something to be grateful for. There are so many things, it could be endless, it's infinite things for which you can be thankful. You can express your gratitude to God, to your fellow beings. Lastly, I'll just briefly touch that how you should exercise gratitude.
आप अपने दिमाग के लिए रोज सवेरे एक्सरसाइज करते हैं, अनुराग जी एक्सरसाइजेस कराते हैं आपको, आपकी मसल्स रोजाना घुमा के देखते हैं, हर दफ़ा थोड़ी सी जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी सी रीच इसकी बढ़ जाती है। माइंड की भी एक्सरसाइज करिए, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, आपके हैप्पीनेस की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। कंसिस्टेंटली करिए, लगातार करिए, रेगुलरली करिए, यकीन रखिए यू विल बी हैप्पियर पर्सन। तरीका क्या है? रोजाना हफ्ते में 2 दिन सिर्फ बैठ करके ये सोचिए कि मैं किस किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ों के लिए फोकस करिए कि इसमें इस चीज़ के लिए मैं क्यों शुक्रगुजार हूँ। हो सके तो उसको लिखिए, लिख करके किसी जार के अंदर, डायरी के अंदर, फाइल के अंदर रखिए और पीरियडिकली इसको रिव्यू करिए। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। और जो चीज़ आपके पास अबंडेंस में है, आपको लगता है कि ऊपर वाले ने काफ़ी दी है, उसको शेयर करिए दूसरों के साथ। यू विल गेट मोर हैप्पीनेस। Thank you, Mr. I Bansal. have to say thank you very much. Thank you, Mr. Bansal. It was very good. Very well said. Very nice. Very well Now, said. now moving to the next participant is Mrs. Pavan Bhatia. Reading books and sketching and singing Shabad Kirtan on the harmonium are some of her pastime. She loves doing that. Some of her very favorite pastimes. Now, over to you, Mrs. Pavan Bhatia. What, according to you, does gratitude mean? And how will you explain to us all what is your concept on gratitude? Over to you, Mrs. Pavan Bhatia. You are on. आप हैं, मैं तो I am not on. आप आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, ठीक है। Very good evening to all the friends who are there to join this session, and it's my privilege to be among all you learned individuals, and it was nice to listen to Bansal ji's comments, and I also have some views to share. So since my youthful days, I have a habit of reading books of philosophers and mentors and thinkers, and whatever they wrote, I analyze that they were all full of gratitude. Their whole philosophy rested on the theory of gratitude. So in my journey of life, I also feel that gratitude is something without which we cannot just live. And first of all, I think gratitude is not a concept. Actually, it is a state of mind. It's that state of mind where, I am at peace with whatever is happening to me. जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, मैं उससे राजी हूँ। वो है ग्रेटिट्यूड या शुक्राना। कि ये नहीं कि आज अच्छा हो रहा है और सब कुछ ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, घर अच्छा है, पैसा मिला है, सब कुछ है, तो मैं शुक्राने करूं। पर अगर कुछ लाइफ में ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो भी मेरे शुक्राने निकले। That is, I think, the real state of gratitude. I think everyone will agree to this. तो कभी-कभी ऐसे लगता है कि जो भगवान ने नहीं दिया ना, उसका भी बहुत शुक्राना है, क्योंकि लेटर ऑन इन द लाइफ हम सोचते हैं कि अच्छा अगर ये मिला होता तो शायद मेरी लाइफ इजी ना होती, नहीं मिला तो बहुत अच्छा है। तो ऑलवेज टू बी इन ट्यून विद द विल ऑफ गॉड, वो है शुक्राना। और सच्चा भक्त वही है जो भगवान की हर लीला में खुश रहता है। वॉट एवर उसने किया, अगर लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हुआ या हमारे अनुसार नहीं हुआ, तो भी उसके शुक्राने में वो रहता है। उसी में एक्चुअली मेरी भलाई है, वो हम नहीं जानते, वो जानता है कि मेरी भलाई किस में है। और शायद आप भी ऐसा मानते होंगे कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ना शुक्राने की, इट इज नॉट इजी टू अचीव।
एकदम से हम हर बात में शुक्राने करने के लिए नहीं तैयार होते, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों में शुक्राने करने सीख जाते हैं ना, तो हमें फिर बड़ी चीजों में और हर पॉजिटिव और नेगेटिव में उसका शुक्राना करना आ जाता है। छोटी छोटी चीजों से, जैसे भी बंसल जी ने भी बोला कि कुछ भी चीजें जो हमें मिली हैं, अगर हम बैठ के सोचें उनके बारे में, तो हमें हर चीज में शुक्राने, ग्रेटिट्यूड आ जाते हैं। तो जैसे मैं सुबह उठती हूँ, आई स्टार्ट माय डे विद ए स्मॉल साइलेंट प्रेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गॉड फॉर द नाइट गॉन बाय, की जो रात बीती अच्छी बीती, और अब जो दिन आया है भगवान वो आपकी याद में बीते। इसी तरह से एक छोटी सी प्रैक्टिस मैंने अपनाई है कि जब मैं नहाने जाती हूँ, बहुत सालों से, जब नहाने जाते हैं ना, हम बिल्कुल खाली होते हैं, हमें कुछ करना नहीं होता, वहां पे दिमाग जो है वो बिल्कुल साइलेंट होता है। उस टाइम को मैं ग्रेटिट्यूड, शुक्राने करने में यूटिलाइज करती हूँ। नहाते समय, साबुन लगाते समय, कपड़े पहनते समय मैंने एक छोटी सी मेंटल लिस्ट बनाई हुई है, लाइक आई थैंक गॉड फॉर गुड हेल्थ, हैप्पी फैमिली, जो खाना मुझे वो दे रहा है, फॉर माई पार्टनर, फॉर माई सर्वेंट्स, माई गार्ड्स, एक्चुअली एवरीथिंग, इवन द बाथरूम एंड द हाउस एंड द फर्नीचर एंड जो भी कंफर्ट्स मिली हैं, उन सब के शुक्राने। और उस टाइम इतनी मन को शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है सोच के। तो आप अगर ऐसा करके देखें तो एक तो नहाने का समय बहुत अच्छा बीत जाता है और उस टाइम एक छोटी सी हमारी प्रेयर हो जाती है। सेकेंड थिंग ये है कि व्हेन यू स्टार्ट थैंकिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन, तो आपकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। आप शिकायत करना छोड़ देते हो एंड यू स्टॉप बिकरिंग अबाउट लाइफ। शक, शिकायत, शिकवे ये खत्म हो जाते हैं और इसकी जगह शुक्राने आ जाते हैं। और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम सब अपनी बीती हुई लाइफ पर गौर करें, तो हमें लगेगा कि उस टाइम जो बातें हमें गलत लग रही थी और हम भगवान से शिकायत करते थे कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए था, तो जब हम बाद में कुछ सालों बाद देखते हैं ना, तो एक्चुअली दे वर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई थिंक यू विल एग्री कि वो, आज हम सोचते हैं कि वो 5 साल पहले जो चीज हुई थी ना, वो बहुत ही अच्छी हुई हमारे लिए, दैट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो मेरे फायदे की चीज थी, लेकिन उस समय हमें वो अच्छा नहीं लगता था। तो जैसे बंसल जी ने भी कहा कि जरूरी नहीं है कि हम आज की चीज के शुक्राने करें, जो पिछली घटनाएं बीत गई और जिनमें हमने कुछ अच्छा हमें मिला, उसके शुक्राने या उसका ग्रेटिट्यूड भी हम आज बैठकर कर सकते हैं। तो मुझे तो अपनी लाइफ में ऐसा ही लगता है कि जो कुछ भी पास्ट लाइफ में हुआ सब अच्छा हुआ और उसका कुछ फायदा मुझे अब आके मिला। तो ऐसे आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एंड आई थिंक एवरी स्ट्रगल मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। कोई भी नेगेटिव या ऊंची नीची बात लाइफ में आती है ना, तो वो हमको कुछ सिखा के जाती है और हमको मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाती है और कोई ना कोई लेसन देके जाती है। तो सो कॉल्ड मुसीबत के समय में भी अगर हम शुक्राने में रहते हैं, तो वो सिचुएशन कब निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत मैंने किताब में पढ़ा था कि 2 साधु थे, वो एक जंगल में कुटिया बना के रहते थे और वो भ्रमण के लिए कहीं बाहर दूर गए थे। जब वो कुछ दिन बाद वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा तूफान आया है और उनकी झोपड़ी की आधी छत टूट गई है। तो वो देखकर एक साधु तो बहुत दुखी हुआ और वो भगवान से शिकायतें करने लगा कि हे भगवान, उसने कोसना शुरू कर दिया, ये क्या किया, मेरी झोपड़ी तोड़ दी, हम तेरी इतनी भक्ति करते हैं और तूने हमारा घर छोड़ दिया, घर ही तोड़ दिया, छत ही उड़ा दी, अब हम कैसे रहेंगे। और जो दूसरा साधु है वो खुशी से नाचने लग गया, आहा भगवान ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं सोऊंगा मेरे को आसमान दिखेगा, मेरे को नीला चांद दिखेगा, वाह प्रभु तेरी लीला। तो मतलब सिचुएशन सेम थी दोनों लोगों के लिए, लेकिन एक ने उसको शुक्राने में लिया और एक ने उसको शिकायत में दिया। तो ये हमारा अपना एटीट्यूड है, हमारा अपना सोचने का तरीका है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे लेते हैं। तो अगर हम किसी सो कॉल्ड नेगेटिव बात में भी पॉजिटिव ढूंढना शुरू कर दें, तो हमारा मन जो है वो शुक्राने में बहुत जल्दी आ जाता है। और अगर हम बार बार हर बात में शुक्राने ही करते रहें, तो हमारा जीवन भी बहुत आसान हो जाएगा और केवल हमारा ही नहीं, हमारे आसपास जिन लोगों की लाइफ भी हमारे से टच करती है,
उन सबका भी जीवन मुझे लगता है आसान हो जाएगा। जो हर समय शिकायतें करते हैं, उनके घर वाले, उनके पड़ोसी, उनके सब फ्रेंड्स भी दुखी हो जाते हैं। सो आई थिंक यू ऑल एग्री कि हर हाल में शुक्राने करने में हमारा भी फायदा है और बाकी सबका भी फायदा है। Very well explained. को मेरा कुछ बात सही नहीं लगी तो वी आर हियर विद एन ओपन माइंड, वी कैन डिस्कस इट। No, no, no. Mrs. Thank you all for patient listening. Very, Thank very you. well explained. Thank you so much. Surrender to is well and you have it all. गुरबानी That's- में भी तेरा बिल्कुल। भाना मीठा लागे, बिल्कुल। और बाइबल भी बोलती है thy will be done on I will earth be in heaven. तो तेरी रजा मेरे लिए राजी, उसमें मैं राजी हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत कुछ कवर हो गया बहुत हमारे। कुछ कर Thank लिया। you so much. You are all very learned people. You बहुत know अच्छा so बोला। चलिए अब हम तीसरे मिस्टर शिवबोरा पे आ रहे हैं। तेरी रहमतों का हूं मैं तलबदार, कि दिया कुछ भी नहीं मैंने, बस तुझसे केवल लिया ही लिया है प्रभु। Now this is Mr. Shiv Bora who will sing a bhajan thanking God for all his blessings. सारे comments आ जाते हैं नीचे देखो। Very well spoken, Mrs. आप Bhatia. दोनों साथ कुछ तरीके बताए हैं शुक्रिया आभार व्यक्त करने के। मैं अपने ईश्वर का एक भजन से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी का सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी बंदगी का सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। ये बंदा तो तेरे ही
सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। हो मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन उसे भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। Thank you, Mr. Bora. It was बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Thank you, Bora. Very, बहुत very प्यारा, बहुत Beautiful. ब्यूटीफुल, very nice. Very ब्यूटीफुल। soulful, very beautiful. Very nice. Yes. Now we take थैंक यू, धन्यवाद। Melodious song. very Very good. The बहुत next अच्छे part अगर ज्यादा is सीरियस होगा तो दो एक मिनट में थोड़ा माहौल हल्का कर दूं। हाँ जी, शुक्रिया हमें करना चाहिए सबका, जिसने भी हमारे लिए ईश्वर के अलावा भी बहुत सारे जरिए दिए हैं ईश्वर ने, जिनके थ्रू हमें सहायता करता है। तो एक बार एक शख्स जो है बैंक में मैनेजर से लोन लेने गए, उन्होंने उनको लोन सैंक्शन कर दिया, चेक बना दिया, फिर उनसे बताया कि हमने आपका लोन सैंक्शन कर दिया है। वो चेक देने वाला था, इतने वो कहने लगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये ऋण आपका जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। वापस वापिस Good जार में one. डाल दिया। Very good one. शुक्रिया भी ढंग से चुकाना चाहिए, शब्दों को नाप तोल के। सही कह thank रहे you, हो। Mr. Bora. Thank you, मैंने Mr. कहा Bora. ज्यादा सीरियस हो गया माहौल। नहीं, बहुत ही अच्छा ह्यूमर ऐड किया आपने बोरा जी, दैट वाज वंडरफुल एक्चुअली। थैंक यू। Now, next participant in our today's session is Mrs. Kiran Bhatia, who says, लोगों के लाख सहारे, बस मेरा सहारा एक तू ही है। क्या करना उन लाखों को, मेरे लाखों जैसा एक तू ही है। Mrs. Kiran Bhatia will now explain the meaning of gratitude and also share some of her childhood experiences narrated by her father in the early years of her life. Over to you, Mrs. Kiran Bhatia. थैंक यू शशि जी। हाँ जी। वो स्टोरी तो मैंने शायद उस दिन सुना दी थी, आज तो बस अपने विचार रखने हैं। हाँ, रखिए। देखा जैसे बंसल जी बोले, पवन भाटिया बोले, बोरा जी बोले, हम जिंदगी की उम्र के उस पड़ाव पे सबके विचार अब ऑलमोस्ट सेम ही हो गए हैं। सबको मतलब कि हम शुक्राना तो उठते बैठते दिन चढ़ता है, सबसे भगवान को पहले कहते हैं कि शुक्र है एक जिंदगी का एक और हमें नया दिन दिखाया। सबसे पहले उठते मेरा रूटीन जैसा है। तो चैलेंजेस बहुत आते हैं जिंदगी में, यही सीखा कि घबराने से कोई आके नहीं करेगा, कि कोई आके ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आई हैं जीवन में कि कोई अदृश्य शक्ति जैसे हमारा साथ दे रही है और वो काम हो जाता है। उस शक्ति का नाम ईश्वर है। फिर हम शुक्र ही करते भगवान का। बंसल जी ने कहा एक रूटीन है, फॉर्मेलिटी में थैंक यू कहना, सबको कहना कितनी बार, पर एक जो दिल से निकलता है थैंक यू,
वो शुक्राना है। ग्रेटिट्यूड मीन्स कि हम ईश्वर का जो हमें उस पीड़ा से निकाल देता है, ऐसी परिस्थितियों से निकाल देता है। हम इंसान हैं, हमारे में नेगेटिव थिंकिंग भी है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है। नेगेटिव ज्यादा हावी रहती है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए। पर अगर हम अपने आप को पॉजिटिव कर लें तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। रोज मेरे सामने, मैं अकेली हूँ जैसे यहाँ रहती हूँ, तो नया एक चैलेंज होता है, तो थोड़ी देर के लिए घबराती, कैसे होगा, फिर हिम्मत करती हूँ कि नहीं, ऐसे तो बैठे नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, और वो हो जाता है। कोई शक्ति है, कोई ईश्वर है, और उसके बाद तो फिर शुक्राना ही मन से, हर समय भगवान का शुक्र है। वो कहते हैं, मैं चलती गई, रास्ते मिलते गए, रास्ते के कांटे फूल बनते गए। ये जादू नहीं, शुक्र है उस ईश्वर का, उसी राह पर जहां लाखों लोग फिसलते गए। मेरा तो भगवान ने रास्ते में फूल ही बिछाए हैं, उठते बैठते मेरा उसका शुक्र करती रहती हूँ। मैं जो ये अपने विचार रखती हूँ, इसको मैं खुद फॉलो करती हूँ कि किसी को प्रीच करना बड़ा आसान है, पर खुद उस पे इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा मुश्किल है। वही है कि वही प्रीचिंग्स दो जो आप खुद फॉलो करते हैं। वाह वाही लूटने के लिए नहीं, कि नेम फेम के लिए हम प्रीचिंग्स दे रहे हैं। बस मेरा तो यही छोटा सा ही है कि कभी अंदाज तो लगाओ अपने अपने सुखों का, मुंह से यही निकलेगा, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत दिया देने वाले ने तुझको। फिर एंड में यही है, always say thank you God for giving me one more day. We all have many things in our life to be grateful. हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है जिसके लिए हमें भगवान का ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। But turn your worries into worship, and God will definitely turn your battles into blessings. Last but not least, with deepest gratitude, I wish to thank you every person who has come into my life and inspired and illuminate me through their presence. Thank you all, and above all, Imoha, for giving me such platform. Thank you all. चलते चलते 4 लाइनें बुल्ले शाह की बोलूंगी मैं। एक बुल्ले शाह से किसी ने कहा, बाबा जी इतनी गरीबी में भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? तो बाबा जी बोले, चढ़ दे सूरज टल दे देखे, बुझ दे दीवे बल दे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चल दे वेखे, जिन्ना दाना जगते कोई, ओ भी पुत्र पल दे देखे, लोकी कहंदे दाल निगलदी, मैं ता पत्थर तर दे वेखे, रब दी हथ खाली ओमल दे वेखे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, मैं क्यों ना शुक्र मनावा, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। थैंक यू। किरण भाटिया जी, वंडरफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, वंडरफुल। मोना जी, किरण जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये हमेशा सोचती थी कि मैं बोल नहीं पाऊंगी आके, नहीं वो स्टोरी सुनानी थी, एक तो टाइम नहीं, स्टोरी तो है, She has overcome her shyness. Very good, Kiran ji, आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे एनकरेज किया आपने, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। Mrs. Mona Ralston, now it is a very popularly known as a nightingale of Imoha family. She is going to now come and present her ideas. Mona, after she lost her husband 5 years ago, she became more inclined towards spirituality. At each step of her life, she could visualize and feel that the protective hand of the Almighty was on her and her family in those difficult times. So Mona will share some of her experiences of her life after she lost her husband. And we would like to hear Mona ji from now. Mona ji, over to you. Please, we'd love to hear your experiences. जी थैंक यू, और थैंक यू एवरीवन जिन्होंने हमसे पहले बोला। आधे से ज्यादा हमारे विचार तो वो टॉपिक है,
लेकिन अब हम थोड़ा जो भी बचा कुचा है वो हम बोल रहे हैं अपने जीवन से संबंधित। जो भी हम बोलेंगे वो अपने जीवन से संबंधित बोलेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुतों ने सब तरह से बताया है, बहुत वास्ट मीनिंग है ग्रेटिट्यूड के, लेकिन एक बोल सकते हैं ऐसा कि जैसे थैंक यू तो छोटा से 2 साल के बच्चे को कहते हैं थैंक यू को, कुछ भी हम लोग बच्चों को ही सिखाते हैं, और हम लोग बड़े तो खैर कहते ही हैं थैंक यू। व्हाट्सएप पे भी रोज रोज थैंक यू बहुत आता है। तो ये थैंक यू तो है ही है, ये तो कहना चाहिए, क्योंकि हमारा सर्वेंट भी अगर हमारा काम करता है उसको भी थैंक यू कहना चाहिए। चौकीदार, गार्ड, ये माली, सबका हम लोग शुक्रिया करते ही हैं, सिखाते हैं, बच्चे सीखते भी है और कर भी रहे हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा है ये सब। लेकिन ग्रेटिट्यूड ऐसा होता है कि जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि मान लो एक हमारा बहुत गरीब एक है और उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो अब उसके पास पैसे नहीं है और वो एडमिशन नहीं हो रहा है उसमें हॉस्पिटल में। उसी टाइम अगर एक आदमी कहते हैं कि नहीं, वहां पर आ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, तो या डॉक्टर कहता है कि नहीं हम पैसे नहीं लेंगे, हम तुम्हारा कर देंगे ऑपरेशन, तो वो ग्रेटिट्यूड जो है, वो जो ग्रेटफुलनेस है, वो जिंदगी भर हमको याद रहती है। ये भी बता चुके हैं कोई लोग। तो ये एक ग्रेटिट्यूड जो होता है वो एक ऐसी चीज के लिए जो हम नहीं कर सकते, जो चीज हमको मिल रही है वो हम कभी नहीं ले सकते ना। जैसे एक बहुत गरीब आदमी जिसकी 100 रुपए तनख्वाह और एक लखपति है जो तो कर ही सकता है, तो वो अब उस लखपति को वो उतने पैसे वापस नहीं कर सकता। व्हेन वी कांट रिपे, दैट इज कॉल्ड ग्रेटफुलनेस, क्योंकि हम उसके ही ग्रेटफुल होते हैं कि अब तो हम तो इनका कुछ इतना शुक्र करें कि हम तो इनका ही। तो ये कौन है जिसको हम वापस नहीं कर सकते हैं? वो सबको मालूम है, वो ऑल माइटी गॉड है, जो कि कभी भी हम उसकी दी हुई जो भी नियामत है तो हम उसको वापस नहीं कर सकते। इंसान को तो फिर भी हम कमा के करके उसके पैसे वापस कर दें, कभी ना कभी कर सकते, लेकिन खुदा को हम कभी नहीं कुछ वापस कर सकते सिवाय इसके कि एक ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, थैंक यू, थैंक्स गिविंग, यही हम कर सकते हैं खुदा को। और दूसरी बात है, हमारा जीवन भी सबके सामने खुली किताब है कि जब हम 3 साल के थे हमारी मदर की डेथ हो गई, तो उसके बाद कोई शुक्र करने की बात नहीं, डेथ हो गई तो बहुत दुख की बात है, लेकिन हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारे पास, हमारे पापा थे, हमारी दादी थी जिन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ा लिखा के हमारे पापा ने हमारी शादी करी, लेकिन शादी की रात को ही हमारे फादर की डेथ हो गई, शादी की रात को। लेकिन इसके लिए भी हम कैसे शुक्र, कोई कहेगा ये क्या तुम्हारे पापा की डेथ हुई क्या, इसमें शुक्र की क्या बात, लेकिन इसमें भी है, क्योंकि हमें इतना अच्छा पति मिला। पापा ले लिए, खुदा ने पापा ले लिए, जैसे भी बीमारी से कैसे भी पापा चले गए उसी रात, शादी की रात, लेकिन हमको एक इतना अच्छा हस्बैंड मिला जिसने हमारी इतनी केयर करी, और हम लोग चाहे वी वर नॉट सो वेल ऑफ, मगर वी वर फॉर ईच अदर। तो ऐसा एक जीवन साथी मिला जिसने कि हमारे को 3, और खुदा के द्वारा, खुदा के दिए हुए 3 प्यारे बच्चे, तीनों बेटे हमारे इतने अच्छे मिले हमको, इसके लिए हम शुक्र करते हैं। शादी के सिर्फ 1 साल बाद माई ओनली सिस्टर डाइड, मेरे पास एक ही बहन थी, माँ तो मर गई थी बचपन में, पिताजी शादी की रात को मर गए, और जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मेरी बहन की डेथ हो गई। इसमें भी कोई खुशी की बात नहीं है, बहन की डेथ हो गई इसमें क्या खुशी, लेकिन हम शुक्र करते हैं कि उसके लिए हम सच कह रहे हैं, हमारे पास इतना काम था और इतना ज्यादा मतलब हम बिजी हो गए लाइफ में कि हमारे पास रोने का भी टाइम नहीं था। तो इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ये नहीं कि खुदा तूने बहन को ले लिया, पापा को ले लिया, लेकिन शुक्र खुदा तूने मुझे दिया मुझे, और बच्चा भी हो गया 1 साल में, जो बेटा बड़ा वाला ये हो गया, उसी में हम लग गए। तो खुदा ने एक ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में डाल दी कि हम आज तक उसका खुदा का शुक्र करते हैं कि हमको सारे बड़े बड़े दुख जो हमारे पास पड़े वो हम सह गए, और आज आपके सामने हम बैठे हैं, ये भी खुदा का शुक्र है। अगर खुदा हमको ताकत कुव्वत ना देता तो आज हम बैठ के आपसे बात ना कर रहे होते। और जहां तक थैंकफुल का सवाल है, सभी लोग थैंक्स नहीं करते हर एक का। जीसस क्राइस्ट जो था, उसने एक बार 10 कोढ़ी आए उसके पास,
है। और किसी ने कहा जाओ जीसस तो सबको चंगा कर रहे हैं, तुम उनके पास जाओ। तो जीसस ने कहा मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, तो वहां एक कुंड बना है, उसमें जाके तुम स्नान कर लो, तुम लोग जाओ दसो, तुम्हारा सब कोर्ट ठीक हो जाएगा। आज भी हमने देखा कई जगह कुंड वगैरह होते हैं जहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा टीबी के मरीजों को कहाँ सैनिटोरियम में भेजते हैं, पहाड़ों पे भेजते हैं, तो कुछ कुदरती चीजें भी होती हैं हमारे जीवन में। तो जीसस ने कहा तुम लोग जाओ, तो पूरे 10 चले गए, 10 ने नहाया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, सिर्फ एक वापस आया। तो बचपन से हम लोग को हमारी दादी भी और हमारे और भी रिलीजियस जो टीचर्स हैं वो सिखाते हैं कि हमको उस कोढ़ी की तरह होना चाहिए जो वापस आके थैंक्स करने आया। तो हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट फॉरगेट, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अरे सांस तो ले रहे हैं, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, सूरज निकल रहा, चांद तारे हवा पानी सब तो मिल रहा है, कुछ भी टेक इट फॉर ग्रांटेड बट वी नेवर सी। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम लोग को ये सोचना चाहिए, और सोचा, और हमने अपने जीवन में ये किया, इसीलिए हम आज इतने मतलब गर्व से कह सकते हैं कि हमने ये सब फॉलो किया अपने जीवन में। हम बराबर शुक्र करते रहे, और कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि जवानी में अगर खुदा को याद करो वो ज्यादा मुबारक चीज मानी जाती, बजाय इसके बुढ़ापे में तो सभी करते हैं कि अब तो कोई काम नहीं, भगवत भजन करो। नहीं, हम लोग को भी बचपन से सिखाया गया, हमारी दादी ने, हमारे फादर ने और हमारे चर्च के लोगों ने, कि हमको बचपन से हमेशा शुक्र करना चाहिए। इसलिए हम अपने छोटे छोटे बच्चों को जो बिल्कुल बोलना सीखते उनको पहले सिखाते थैंक यू गॉड फॉर दिस डे, बस एक लाइन। फिर उसके बाद और बड़े हो गए, थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड। फिर और बड़े हो गए, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड, है ना। तो एक ये हमारे पापा ने जब हम क्लास 5 में थे तो हमको सिखाई थी, फादर वी थैंक दी फॉर द नाइट एंड फॉर द प्लेजेंट मॉर्निंग लाइट, फॉर रेस्ट एंड फूड एंड लविंग केयर एंड ऑल दैट मेक्स द वर्ल्ड सो फेयर, हेल्प अस टू डू द थिंग्स वी शुड to be to others kind and good। तब तो हमने रट ली एक पोएम की तरह, लेकिन जब जब हम बड़े होते हैं हमें इसका मीनिंग पता चला। फिर हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बता रहे हैं और हमने अपने बच्चों को सिखाया। और एक बात हम कहना चाहते हैं, हमने हमारे जब बच्चे थे हमने उनको हमेशा सिखाया कि कुछ भी अच्छा हो तो बहुत खुश तो हो, अपने पार्टी कर लो, अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर लो, आज तो भैया हमने अच्छा हो गया, लेकिन सबसे पहले खुदा का शुक्र करो। हमारे तीनों बच्चे हमने उनको सिखाया कि पहले जाके शुक्र करो, दुआ करो, घुटने के बल होके दुआ करो। जब एरिक डेरिक हम बताना चाहते हैं कि सब कुछ ये हम सिखाया और हमने खुद भी किया कि जब भी किसी बीमारी से अच्छे हो गए तो ये नहीं कि अब हम अच्छे हो गए अब हम बड़े खुश हो गए, नहीं, हम पहले दुआ करें, पहले शुक्र करें, खुदावा तूने मुझे बीमारी तो दी, लेकिन ये किसी के पास एक पैर है एक पैर नहीं है तो वो उस पैर के लिए ना सोचे, पर इस वक्त जो पैर ठीक है उसके लिए खुदा का शुक्र करे। हमको जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है, अब हम वही ना सोचते रहें, लेकिन खुदा का शुक्र करें कि खुदा हम जिंदा हैं और आज हम आप लोग से बात कर पा रहे हैं। यही सारी चीजें जो हमको मतलब वी शुड बी प्रैक्टिकल इन दीज थिंग्स। तो वही हम एरिक डेरिक जब भी कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जाते थे और लौट के आते थे, बहुत उनके ऊपर कोई रुपए फेंक रहा, कोई कुछ, बहुत उनकी तारीफ वगैरह होती थी, तो सबसे पहले आके वो दुआ करते थे, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है तूने आज हमको इस लायक किया। ये गला जब हम गाना गाते हैं तो ये हमारा हमने थोड़ी, नहीं तो खुदा देता है। तो हर एक चीज जो हमको मिली, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब चीज हमको खुदा देता है, तो हमें उसी का शुक्र करना चाहिए। यही कहना चाहते हैं। इसकी एक छोटा सा गाना एरिक ने लिखा था, तो उसने कहा था मम्मी गा देना, तो है टाइम तो गा दे। यस यस मैम, ले गाइए। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। मेरा प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, मेरा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा,
सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा प्रभु, अपनी राहों में हमको चलाना। मेरा प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है। मेरा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान। थैंक यू। मोना जी बहुत मोना जी बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे मोना जी, बहुत अच्छे। And you're इसीलिए आपको absolutely 93 right, बोलते that Very बहुत good. अच्छा, infuse excellent. मोना जी, बहुत बढ़िया। Very Yes. good. lot of feeling you had in You're this. absolutely right that we must infuse that into our lives. Yes. मोना जी बहुत अच्छे। ऐसे ही इनके हाथ पैर ठंडे हो रखे थे, ऐसे ही ठंडे हो रखे थे इनके हाथ पैर। अच्छा बोलते हैं। गाते हो आप। Yeah. मोना जी अब बहुत गर्म हो जाओ, अब गर्म हो जाओ। मोना जी आपने गाया भी अच्छा, और आपने जो लाइफ की स्टोरी सुनाया वो भी काफी कुछ दूसरों को सीखने के लिए भी आपने एग्जाम्पल दिया। कमाल है, कमाल है। That's excellent. Hats off to you. And मोना जी, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात लगी जो आपने कहा कि जवानी के अंदर ये वाला चीज जो है Yeah. ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि कच्ची कली को रंग जल्दी पकड़ता है और ज्यादा पक्का रहता है। वो आगे बचपन में अगर करें, सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। बहुत सही कहा। बहुत सही कबीर का दोहा बोला आपने। चलिए, now let's move on to Keshu ji. He is our next speaker. Ever smiling, ever talented, a music teacher by profession who loves to play the sitar. Now she's going to share some of her profound experiences of life. Over to you, Keshu ji, for sharing your experiences. नमस्कार। नमस्कार। Yeah. नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? मैं दिख नहीं रही थी। ओके। हाँ जी। अरे शुक्राना, शुक्राना उस भगवान का जो हमें इस खूबसूरत दुनिया में लाए, हमारे जीवन में की अच्छाइयों बुराइयों की हर चीज, अच्छी बुरी चीजों का अवगत कराया। मैं अपने जीवन की मतलब एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूंगी कि इसका बहुत बड़ा शुक्राना है भगवान का मेरे जीवन में, इसलिए कि मेरा एक बेटा था जो था मतलब पैदा हुआ तो उसके इंस्टेंटाइन में बहुत प्रॉब्लम थी पेट में, तो उसका पूरा पेट का ऑपरेशन कर दिया। पूरा पेट काट के उसकी आंतें बनी नहीं थी, दोबारा से बनाई गई, सारा ऑपरेशन किया गया। और उस 2 दिन के बच्चे का जो ऑपरेशन किया, वो हाथ जोड़ जोड़ के हम भगवान से शुक्र मना रहे थे। लेकिन जैसे वो बचा तो हमने बहुत शुक्र मनाया। पर उस बच्चे को जो उन्होंने सुइयां चुभो चुभो के जो ड्रिप लगाते हैं, शरीर का कोई अंग नहीं बचा होगा कि उस बच्चे को उन्होंने ड्रिप लगाने में कोई जगह छोड़ी। हार के वो सिर में ड्रिप लगाने लगे, जगह नहीं मिली, सारी जगह सूज गई थी, नीला नीला वो दवाई लगा देते थे। और सिर में जब ड्रिप लगनी शुरू हुई तो मैंने भगवान से शुक्र करने के लिए कहा कि भगवान, इस बच्चे ने, हम क्या दुख भोग रहे हैं जो ये बच्चा दुख भोग रहा है। हमने कहा भगवान शुक्र कर दीजिए, हमारे पे बस एक शुक्र कर दीजिए, इसको मुक्ति दे दीजिए। उस वक्त हमने सिर्फ भगवान से यही मांगा था। तो खैर भगवान ने सुन ली हमारी, शुक्राना भगवान का जो सुन ली। हमें अपने लिए तो बहुत दुख रहा, पर फिर भी हमने उस बच्चे के लिए, हमारा उस बच्चे के दुख के आगे मुझे अपना दुख ना बहुत कम लगा, बहुत ही कम लगा। मेरे को महसूस नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता चला उस वक्त रहा। बट हाँ, बच्चे के लिए मैंने काफी शुक्र किया भगवान का कि आपने सुन ली हमारी। उसके बाद करीब 8 साल तक कुछ नहीं भगवान ने मेरी सुनी। तब भी मैंने शुक्र मनाया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक लड़की गोद ले लेते हैं।
हस्बैंड मेरे सीधे हैं, बेचारे बहुत अच्छे हैं। वो बोले ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा हो। लेकिन हमारे परिवार बड़ा है काफी, 3 मेरे देवर हैं, 3 मेरी नंदे हैं, नंदे एक नंद गुजर गई हैं, तो सबने अपोज करना शुरू कर दिया कि नहीं, हमने किसी दूसरे बच्चे को में नहीं लेना। मैंने कहा अच्छा हम लड़की गोद ले रहे हैं और लड़की गोद तो आपके, उन्हें ये था कि इनकी जायदाद वायदाद में हिस्सा मांगेगा वो लड़का, हम नहीं देंगे। हमने कहा हम लड़का ले ही नहीं रहे, हम लड़की गोद ले रहे हैं। लड़की में तो शादी कर देंगे ना, लड़की की शादी करके तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं माने। तो उसपे भी भगवान का बहुत बहुत शुक्राना कि जब हम ये बहस कर रहे थे तब भगवान ने खुशखबरी सुना दी। अब मेरा एक बेटा है, शुक्र है, सुखनाल बहुत अच्छा है, बहुत सुनता है हमारी, और आगे भी ऐसा बेटा भगवान सबको दे। मैं ये नहीं कहती वो पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया है या कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, लेकिन हाँ हम दोनों से प्यार बहुत करता है, जो कहें वो सुनता है, बस हमको इतना बहुत है। आज की जनरेशन अगर आपकी बात सुनती है तो यही बहुत है। लेकिन जब ये नहीं हुआ था, उस बीच हमारी सास ने भी हमको मतलब इतना बोलना शुरू कर दिया। पहला बच्चा जब बीमार हुआ कि तुम्हारी मम्मी को कोई बेटा नहीं, हम 3 सिस्टर्स हैं। मैंने ऐसे ही शौक में कह दिया था, मम्मी बहुत खुश हो रही थी बेटे के नाम पे, तो मैंने कह दिया अरे आप क्यों परेशान हो रही हो, आप ही का बेटा है, रख लो आप भी, इसमें क्या है। तो वो सास हमारी कहने लगी कि ऐसा क्यों आपने बोल दिया, आपने बोल दिया ना कि आप रख लो मम्मी को, तभी आपका बेटा बीमार हो गया। आप बोलो वापस लो अपना बेटा, बोलो हम नहीं दे रहे आपको। मैंने कहा मैंने नहीं बोलना, अब जो बोल दिया बोल दिया। और जब मेरे बेटा गुजर गया उसके बाद मेरी दिरानियों के 2 बच्चे थे, दोनों के एमए पढ़ी लिखी हैं दोनों। मेरे को उन बच्चों के पास जाने नहीं देती थी, हाथ लगाने नहीं देती थी। बच्चे अगर हमारे एक ही घर में हम सब थे, तब एक ही घर में एक एक कमरे में हम लोग थे, तो जब मेरे कमरे में कभी बच्चे आ जाते थे तो इतना पकड़ के लेके चली जाती। अब सब शांति है, अब कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये शुक्र है भगवान का बहुत बहुत। इससे मैं मेरी जिंदगी मतलब भगवान ने ना बना दी, एक बस एक खुशी है देख। ये तो मैं अपनी जिंदगी में पूरी रुल रही थी, बड़ी खुशी देखी है भगवान ने, मेरी जिंदगी बना दी। अब मैं आपको एक छोटा सा एक भजन सुनाना चाहती हूँ बस। सुनाइए केशु जी। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरु देव की पूर्ण कृपा। तू दया कर और न कोई, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है।
Keshu ji, very good, Keshu ji, very Beautiful, Keshu ji, beautiful. Very beautiful. केशव जी And बहुत so अच्छे। inspiring. बहुत सुंदर आपका आपकी एक्सपीरियंस था। स्टोरी से लगता है आप बहुत तप के निकले हो। हाँ सचमुच, तब के सचमुच ये तो नहीं। इनकी कहानी इतनी दिल को छूने तप के वाली, सोना हो जाता है। बहुत, हाँ तब के सोना, बिल्कुल सही। कॉम्प्लीमेंट कि आप लोग में बहुत हिम्मत है। हाँ, वेरी ट्रू। मोना जी, आप You are brave, I tell you, you are brave. Yes, Thank you, Ji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Same feeling for you, Keshu ji, that you're a brave heart. It takes lot of strength for a mother to decide that, and you are really heart, I should say. Thank you. Very Thank you true, so much. very Thank you true. so much. And you know, भगवान ही देता है ये करेज। पता नहीं हमने एकदम शुरू करेगा फिर बाद में आदेश everybody to please mute. हाँ प्लीज, खास नहीं। Now we all have to learn from this person, that is Mr. Subhash Arora. After his accidents and multiple surgeries, he changed these adversities into opportunities, and he revived himself by pursuing his singing talent. Mr. Subhash Arora, he knew this was his strength, and he began connecting himself to his inner God and started singing bhajans in his praises. So he's offering his gratitude to the Almighty by singing a bhajan on Shukrana. Shukar Karam Mera Satguru, Shukar Karam. Over to you, Mr. Subhash Arora. Thank you, Shashi ji. Thank you very much. मैं भगवान का बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ। मैं पहले तो दो लफ्ज बोलूँगा कि हमें ईश्वर ने इतने साधन दिए हैं कि हम उनको महसूस नहीं करते। पंचतंत्र जो दिए, हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, हम महसूस नहीं करते। जैसे भाई साहब ने पहले बोला, हॉस्पिटल में जाएं तो 3 दिन का बिल कितने लाख का आ जाता है हवा का। इतनी हवा में मिलती है, इतनी धूप हमें मिलती है, पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो भगवान का बहुत शुक्र है जो हमें हर करना चाहिए, हम नहीं करते। इसके अलावा शरीर के अंदर इतने अंग भगवान ने कैसे बनाए, क्या मैकेनिज्म उसका है कि एक अंग थोड़ा सा खराब हो जाए तो पता चलता है, एक उंगली में अगर चोट लग जाए तो पता चलता है उस उंगली की क्या इंपॉर्टेंस है। लीव, किडनी, लीवर, हार्ट एंड ऑल दीज बिग पार्ट्स जो है। तो इस करके भगवान का शुक्र मैं एक भजन से सुना के करूंगा, जो मैंने 3 दिन में ही प्रिपेयर किया है, क्योंकि हिंदी का भजन था। पहले मैंने पंजाबी का किया, मैंने हिंदी का किया, तो क्षमा करना अगर कोई आवाज में किसी चीज में गलती हो जाए। शुक्र। शुक्राना 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 तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं बखाना। शुक्राना 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 तेरा शुक्राना, शुक्राना 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 तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे द्वार कछ है शुक्राना, मेरे बचाव का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना 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 तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। शरण तुम्हारी जन्नत है, शरण तुम्हारी जन्नत है, शरण तुम्हारी जन्नत है, उस जन्नत का है शुक्राना। शुक्राना 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 तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। तेरी रहमत करूं मैं कैसे बखाना,
शुक्राना 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 तेरा शुक्राना 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 तेरा शुक्राना। थैंक यू। Very good singing talent, Mr. बहुत Subhash. शुक्राना। थैंक यू Very वेरी good. बहुत अच्छे, Very- बहुत अच्छे। बहुत अच्छी बहुत बात। अच्छा। Very good. बहुत Very, सुंदर very गाया सुभाष जी तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो। और लिखो लिखो Thank you. अच्छा और गाया बहुत बढ़िया जी सुभाष जी, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया गाया। गाया। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा लगा। Thank you. Now, Mrs. Rama Bhambri is the next one. रबदी रजाविच, तू रहना सीख ले, हर समय उसका तू नाम लेना सीख ले. Mrs. Rama Bhambri, a true homemaker, having a very balanced approach to life, will now share her overall view and express her thankfulness to God in different ways. Mrs. Rama Bhambri, over to you. नमस्कार जी सबको. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस वर्ड्स. बट एक्चुअली इतने महानुभाव यहाँ बैठे अच्छे अच्छे बोलने वाले, मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है, पर सिर्फ थोड़ा सा मेरा डाउटफुल था इसलिए. रमा जी जो सबने बहुत अच्छी परिभाषा बता दी, बहुत एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ कर दिया. मैं एक चीज जो मुझे थोड़ी सी लग रही है कि हम सिर्फ ये जो शुक्र करते हैं भगवान का या किसी का भी, एक्चुअली मेन तो भगवान का करते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छे दोस्त मिले, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले, फिर अच्छे पेरेंट्स सबसे पहले मिले. तो ये सारी चीजें जो मिली तो उन्हीं के थ्रू, क्योंकि ऐसा भगवत गीता में भी कहा है कि जन्म मृत्यु हानि लाभ यश अपयश कुछ भी हमारे हाथ में नहीं, वो भगवान के हाथ में है सब कुछ. तो वो ही देता है, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार होते हैं उनके. दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब जैसे और भी हमें नेचर से कितना कुछ मिलता है, तो सिर्फ शुक्रिया मुंह से करने की बजाय, वर्ड से करने की बजाय हमें थोड़े अपने एक्ट्स भी ऐसे होने चाहिए. जैसे कि फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की, तो हमें भी रेसिप्रोकेट करके आगे बढ़ के, एक जगह से अगर हेल्प मिलती है तो हम दूसरी जगह हेल्प करें. हम भी ऐसा एटीट्यूड रखें. और थैंक्स तो खैर करना ही है सबका, वो ठीक है, लेकिन उसको एक्शंस में थोड़ा लेके आए. जैसे कि फ्रेंड्स हैं उनके लिए हेल्प कर दें, जैसे पेरेंट्स हैं उनको सुने, उनकी बात सुने. पेरेंट्स में अपने इन लॉज भी हैं और पेरेंट्स भी हैं. तो मेरी हम बहुत अच्छे से, मैं कई बार कुछ बनाती थी ना खाने वाने में, तो मेरे मदर इन लॉ बहुत खुश होके कहते थे मेरे ना दिल से आशीर्वाद निकल रहा है आज. तो बड़ा अच्छा लगता था वो जब ऐसा बोलते थे. तो इसी तरह नेचर ने हमको जैसे दिया, तो हम ये उसको थोड़ा संजो के रखें, उसको संभाल के रखें. हवा है उसको प्रदूषित ना करें, पोल्यूशन ना फैलाएं, और पानी है उसको वेस्ट ना करें. उसके लिए भी सोचें कि पानी वेस्ट नहीं करें और दूसरे लोगों को भी मिले वो चीज. तो इसी तरह बस यही मेरा कहना है कि अपने एक्शंस में थोड़ा हम कैसे लाएं उसको, और ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है. ये अपनी खुशी के लिए हम करते हैं एक्चुअली. तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो बंदा ग्रेटिट्यूड पे करता है वो अंदर से बहुत खुश होता है, उसके लिए तो खुशी मिलती है. इज द हैप्पीएस्ट पर्सन. तो अभी एक छोटा सा भजन मैं आपको सुनाती हूँ, टाइम है तो. हाँ जी हाँ जी, छोटा सा. हाँ जी. ए भगवन मैं मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां. मैं जर्रा तू आसमां, मैं जर्रा तू आसमां. रहमो करम करके रहमो करम, तूने पहुंचाया पल में कहां से कहां. बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां. दी है ऐसी रहमतें जिसके मैं काबिल न था,
ऐसी थी मेरी जिंदगी जिसका कोई साहिल न था, तू मिला तो सब मिला, सब मिला तो रब मिला, झूम उठी जिंदगी जीने का सबब मिला। ऐ भगवन मैं मेरे मेहरबा, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं जरा तू आसमां। काफी है ना? बहुत अच्छा। मिसेस रमा बामरी जी, वेरी गुड। रमा जी बहुत अच्छे और सो मेनी थैंक्स, आपने आज पार्टिसिपेट किया। सो मेनी थैंक्स। नेक्स्ट टाइम भामरी जी आप बहुत प्यारी बातें कही, प्रैक्टिकल, बहुत सुंदर बड़ा गाया और बहुत अच्छा। अभी आपने कम गाया है ना, छोड़ दिया। रमा जी आपको नेक्स्ट टाइम अच्छा लगा और गाना भी बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए 1 मिनट है। नेक्स्ट टाइम मैं इंश्योर कि आप जरूर पार्टिसिपेट करें जब भी हम लोगों का कोई ना कोई इस तरह का बॉलीवुड सिंगिंग। मजा आ गया रमा जी, मजा आ गया। रमा जी बहुत बढ़िया गाया, रमा जी बहुत बढ़िया बोला भी आपने। और इट्स बीन साइंटिफिकली प्रूवन। हाँ जी, कमाल कर दी, मेरे लिए 1 कमाल। मिनट है। बहुत अच्छा लगा। Shashi ji, I would like to know, as we are running off time, request everybody to please. रमा जी बहुत बहुत थैंक्स, इतना अच्छा गाया। Now coming to the next list of speakers, almost the last speaker of today's evening is Mrs. Meeta Rawal, whose philosophy is to live and to let live. She believes in forgetting and forgiving. Today she is going to tell us we must learn to appreciate ourselves as well as compliment others. List out those things before going to bed that make you and others happy. So over to you, Neeta. And also scientifically proven that those people who practice this philosophy each day not only increase happiness, but they make the environment also very happy. People love those people who make them happy. And whenever you get time to appreciate yourself and think of the things that make you happy also. So over to you, Neeta Rawal. Thank you, Shashi ji. All the members have already spoken very beautifully about almost all the aspects of gratitude very well. And Oprah Winfrey has very aptly said, be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you'll never have enough. So now let me conclude everything with a very few simple basic methods जो कि हम सभी अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकते हैं और इन्हें अपना सकते हैं इन मेथड्स को। हालांकि इन सभी चीजों के बारे में ऑलमोस्ट आप सब लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, लेकिन मैं इस सबको जस्ट एक सम अप कर देती हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स के साथ जिनको हम अपनी डेली लाइफ्स में अडेप्ट करके और अपनी लाइफ्स को बहुत ज्यादा और खूबसूरत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगी क्योंकि हमारे पास आई थिंक टाइम कम है। Is that right, Shashi ji? Or yes, please. Yes, we are. Okay, so I will be very. I will just put these up. Some all the points which you all have already spoken precisely and shortly. So first point is appreciate yourselves. So start with yourself. Stand in front of a mirror और अपने बारे में जो अच्छी बातें हैं, चाहे ये आपकी past achievements हैं, आपके present efforts हैं, आपकी virtues हैं, वो सब आप अपने आप को बोलिए, क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप से शुरुआत करें तो बहुत अच्छा होता है कोई भी चीज के लिए। Compliment yourself with words like beautiful, loyal, disciplined, kind, loving, etc. And you'll notice how it makes you feel so much better about yourself. फिर सेकंड है ग्रेटिट्यूड जर्नल। जैसा कि ऑलरेडी हमारे कुछ स्पीकर्स इस बारे में बोल चुके हैं, स्पेशली मिस्टर बांसल जी ने ये बात बोली थी, व्हेन यू मेक अ ग्रेटिट्यूड जर्नल यू कम फेस टू फेस विद योर ब्लेसिंग्स। इसमें क्या करना है, बस आपने एक छोटी सी डायरी बनानी है और कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें जो जिनके लिए आप थैंकफुल हैं उनके बारे में बस लिखना है आपने। जब कभी आप लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तब आप इस डायरी में से अगर निकाल कर थोड़े से भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग सो मच बेटर। बिकॉज जो है ये ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस डोंट एग्जिस्ट टुगेदर। यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी एंड ग्रेटिट्यूड एंड डिप्रेशन डोंट स्टैंड टुगेदर। आई एम सॉरी, जल्दी बोलने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ा रही हूँ। कोई बात खैर, नहीं। फिर
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेटिट्यूड विजिट्स। मोना जी ने इस टॉपिक पे टच किया था। वी ऑल हैव समवन इन आवर लाइव्स whose unconditional love, help and support meant a lot to us. We feel as if we owe our happiness and success to them. अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई लोग हैं तो उनसे जाके कम से कम महीने में 1 या 2 बार मिल आइए, या कम से कम आजकल जैसे नहीं जा सकते हैं तो फोन कर लीजिए उनसे और अपना ग्रेटिट्यूड जरूर एक्सप्रेस कीजिए और फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा लगता है। Because feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Next point is, do not hesitate to be happy. If you feel happy, do not shy away from it. Remind yourself that you deserve to be happy. आपने सारी जिंदगी काम किया है, अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और अपनी सारी ड्यूटीज जो है फुलफिल की हैं, and now you truly deserve to be happy yourselves also. फिर चाहे वो कोई बड़ी बड़ी चीजें हो, जैसे आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीदी, मकान खरीदा, या छोटी से छोटी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि अभी आपने जूम में अपनी पिक्चर डालनी सीख ली या व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करनी सीख ली। हर चीज के बारे में आपकी खुशी जो है वो आपका हक है। और accepting happiness makes us stronger and more grateful for what we already have. अगर कभी आपने कुछ ट्राई किया, जैसे कि पवन भाटिया जी ने बोला था, और लूज कर दिया, नहीं कर पाए वो काम या नहीं आपसे हो पाया, तब भी आपको ग्रेटफुल रहना है। या कोई चीज आपको नहीं मिली जिसके लिए आपने कोशिश की, तब भी ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि आपने उसमें से भी कोई ना कोई लेसन जरूर लर्न किया होगा। और कई बार हमने ये भी लर्न किया कि हमें ये आगे से ये वाला काम नहीं करना है। सो सबसे ऑलमोस्ट अप टुवर्ड्स द एंड वी आर, फाइंड अ ग्रेटिट्यूड बडी। इट कैन बी योर स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, फ्रेंड, कलीग, या आपका जो घर में काम करने वाला कोई सर्वेंट है, वो भी हो सकता है। ये इसके साथ आप रोज थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठें और सारी चीजें याद करें, डिस्कस करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, एक दूसरे को याद कराएं, थॉट्स शेयर करें और मोटिवेट करें एक दूसरे को। ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाएं। फिर इसके बाद आप एक लास्ट में मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन अ पॉजिटिव वे इन योर लाइफ। When you're writing, try to revert to those days and feel that same thankfulness in your heart again. Gratitude notes भेजें आप, जैसे छोटे छोटे, कभी कभी किसी को भी आप की लाइफ में जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, यो अभी के लिए, अभी किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो उनको एक छोटा सा नोट चाहे व्हाट्सएप करके भेजें, चाहे फोन करके बोलें। Gratitude is a magnet. The more grateful you are, the more you will receive to be grateful for. That's all I have to say. Thank you. Thank you, Neeta. Very well said. Very well said. I must say, Neeta ji, very good summary. 1 मिनट का And एक after मिनट all, देंगे। बहुत अच्छा निचोड़ बता दिया नीता जी, बहुत अच्छा सारांश देंगे। I was under the pressure कि मैं जल्दी से खत्म करूं, नहीं तो मैं और काफी अच्छे से बोल सकती अब थी। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। समरी Very nice, very precisely told. Neeta ji, that you have actually prepared very well, and but unfortunately we didn't get enough time to speak on the thoughts you were prepared for. हमारे लिए But we will definitely look after, you know, कि आगे next session को 1 मिनट का टाइम दे दो। Okay, everyone now. बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया नीता जी। Everyone, now we have to choose the moderator for the next session. We have a suggestion from the team, Mr. Bora, Shiv Bora. 1 मिनट का टाइम Shiv Bora, को भी दे दो। Bora ji, मेरे को भी 1 मिनट का टाइम दे दो। दे दो प्लीज। मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे को भी दे दो 1 मिनट का टाइम। लीना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। I'm sorry. लीना जी, मदन जी 1 मिनट कुछ बोलेंगे। 1 मिनट ही लेना जी। मैं ज्यादा नहीं बोलता। आपने ग्रेटिट्यूड पर बात कर ली ना, तो मेरे को भी लगा इसमें मैं भी शेयर कर ही डाल दूं अपना। इस पे यही मैंने बताना है, जब इस प्लेनेट पर आदमी का बर्थ होता है तो उसको 2 चीजें मिलती हैं, एक उसकी बॉडी और एक उसको प्लेनेट। अगर बॉडी का दोनों का भगवान ने दिया है, जैसे हम कहते हैं, तो इसका ग्रेटिट्यूड कैसे देना है ये मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ 1 मिनट में। पहली होती है बॉडी, उसका 5 बजे उठ के रनिंग करके, योगा करके, और उसको अच्छे से, ये ना हो भगवान देख रहा है ऊपर कमर दी थी तूने कमरा बना दिया इसका, वो ये भी देख रहा है कि तूने मैंने अपना सीवरेज तूने सारे शहर का ही खोल दिया है, मैंने सिर्फ अपना ही तेरे को दिया था, खाते जा रहे हैं। पहली है बॉडी,
बॉडी का ध्यान रखो। जब आदमी बीमार हो जाता है तो भगवान कहता है मैंने तो तेरे को अच्छी बॉडी दी थी, अब मैं क्या करूं, तेरे को इंसुलिन के टीके लगा ले क्योंकि तूने मीठा ज्यादा खा लिया। दूसरा है प्लेडेट देता है भगवान जब बर्थ होता है, उसकी कैसे करनी है, किसी एक को नहीं देना। 100 तरीके हैं मेरे पास, मैं भी कुछ करता हूँ लेकिन मेरे से होते नहीं है। जैसे कहीं डस्टबिन लगा दो पार्क में, कहीं वाटर कूलर लगा दो रिक्शा स्टैंड में। रिक्शा स्टैंड अपने घर के पास बहुत सारे होते हैं, एक पंखा ही लगा दो जिसको मैं कई बार देखता हूँ कई अमीर आदमियों ने अपने घर के बाहर कूलर लगाया होता है, रिक्शे वाले कूलर से पानी पी ले। ऐसी कोई चीज कर जो सारों को, कई लोगों को बेनिफिट। Yes, thank you. जो अमीर आदमी है वो कई बार डोनेट कर देते हैं MRI मशीन्स, वो तो बहुत महंगी होती है और कईयों को फायदा हो जाता है। We have a meditation session. As we are running off time, we'll definitely see you next time. शशि जी, नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग शिव बोरा जी का नाम सजेस्ट कर रहे हैं। Yes, please. Now we have meditation. बोरा जी, आपको कोई मतलब इस चीज से डू यू एग्री टू दिस? इस लाइन में नॉलेज तो है नहीं, मुझे कोई हेल्प के लिए चाहिएगा। करो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ जी, बस चलिए। गो अहेड बोरा जी, हमारे साथ कोई भी वी आर विद यू। बोरा जी, एवरीबॉडी वी आर विद यू बोरा जी, डोंट वरी। गो अहेड, गो अहेड। एवरीबॉडी हैज दैट, यू नो, दैट मच। ये तो बीच के जो स्पिरिचुअलिटी के कमेंट्स भी बोलने नहीं आते। अरे बुलवाइए, श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बोरा जी जीत जाएंगे हम, आप अगर हम साथ हैं। बुला देंगे आपको। Everybody, we are running off the time. Everybody, please, we are running off the time. Now, come on, let us come to the meditation part. बोरा जी की तो कोई सुन ही नहीं रहा, वो बेचारे कुछ कह रहे हैं, हम सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे उनकी बात। मैं कह रहा हूँ मुझे हेल्प चाहिए कि कर्नल शर्मा, भामरी जी, नीता जी, रेणु धवन जी, अरे सब में है भैया, सब है आपके साथ। इनमें से एक को जो है पूरी जिम्मेदारी लेके मैं सिर्फ रबर स्टैंप होके साइन कर दूंगा। चलो फिर आप जैसे come on जी, let us come to the meditation now। आपने हाँ, बनाए दे देते तो मैं बोल देता हूँ। चलो अब नीता जी की मेडिटेशन पे आते हैं। ओके, लेट्स कम टू मेडिटेशन नाउ। अभी इस बार तो मैंने तो अभी इस बार शशि जी को असिस्ट कर दिया, अभी कोई और लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 महीने के लिए मुझे थोड़ा सा वो दे दीजिए। हमें तो इन्होंने निकाल ही दिया है। चलो ये बाद में डिसाइड कर लेंगे, बाद में। नहीं तो अब परवीन जी कोई। I'm sorry, but we are running off time. So as we have decided for the moderator for next session will be Mr. Shiv Bora, and then you can mutually decide whom to, you know, who's going to help him and in further sessions and all. And we'll see you tomorrow at 8 with Dr. Anurag. Till then, everybody please take care of yourself. Bye bye. Leena, there is some part left over. Leena. Yes, please. बोरा जी, मैं सबसे पहले बोलूंगा स्पिरिचुअलिटी में आपके साथ। चलो कल कर लेना। Leena. Yes, I'm here, ma'am. I'm here. I'm already here. Yeah, Neelu has to take a meditation of 5-10 minutes. I'm really sorry, Shashi ji, but we are already running off time, and every time it happens that we are crossing, 15-20 minutes are going up. So आप जब भी अपना सेशन कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो प्लीज टाइम को कंस्ट्रेंट में रखिए थोड़ा सा। इट्स ऑलरेडी 10 मिनट्स अप, सो आई एम नॉट श्योर कितना टाइम मैं मतलब आपको दे पाऊंगी इस बारी। रिक्वेस्ट अगर नीलू जी से आप करके देख लीजिए। आई मीन इफ इट इज नेसेसरी। 5-7 मिनट कोई ज्यादा नहीं होते। फाइन देन Leena, people prepare for it. Okay. They should be given. 5 मिनट ऊपर हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। ओके, 15 मिनट ऊपर हो जाते हैं कई बार जो है। ठीक है नीलू जी। सेशन लेट भी तो स्टार्ट हुआ था ना, सो वी स्टार्टेड बट ज्वाइनिंग में पीपल वर नॉट देयर, सो बोलने में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं चलता। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, आई एम नॉट सेइंग नो बिकॉज़ इवन वी डोंट लाइक टू सेइंग नो, बट आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह के सेशंस आप करते हैं थोड़ा सा टाइम को कंस्ट्रेंट पे रख लीजिए। But Leena, excuse me for saying it, but clubs होते हैं तो you have to be a little lenient with the timings. 10-15 minutes ऊपर कोई बात नहीं होती in the clubs. I think so. You can check with. Fine. Yeah, it always happens. थोड़ा सा. For the clubs, you should give everyday program is fine that you are very disciplined in time. But for the clubs, you should give a little time.
All right. Okay. किसी को बोलते Thank you बोलते so ये much. नहीं कह सकते कि तुम बंद करो। अच्छा अब नहीं, शांत हो बात जाओ आपकी सब। ठीक है बोरा जी, बिल्कुल ठीक है, बट मैंने नॉर्मली देखा है कि मतलब मैम इज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट टाइमिंग्स, तो आई वाज थिंकिंग कि शायद टाइमिंग्स को लेकर थोड़ा कंस्ट्रेंट्स नहीं, रहता है। यहाँ तो थोड़ा लीनियंट आपको होना पड़ेगा, कई बार जल्दी भी हो जाता है कभी। Let's not waste time. Let's Okay. not waste. Not waste time now. Why we are discussing it? Yeah. Let her do, Neeluji. Shashiji, you're on mute. Now, Neeluji, please conduct the meditation session. I'm not going to say much about you. Okay, you've been with the art of living for a long time and you are very, I mean, you can conduct meditation sessions. So I'm just coming to you and saying that with your expertise, we will all sit back, relax, enjoy those peaceful moments that you're going to give us and dive into the ocean of bliss. So please close your eyes and be with Neelu Srivastava for this meditation session. Over to you, Neelu ji. But I don't see Neelu ji here. Why? I don't know because मुझे नीलू जी के नाम से कोई दिखाई नहीं। Program क्या हुआ? नीलू किधर? अभी तो थी नीलू इधर। Just 1 minute. I can Lina? see Neelu's iPad there. Lina, Neelu. she has got somehow disconnected. The name Neelu ji, can you hear us? दोबारा करो आप एक Maybe बारी there's some internet problem. Yes, Yes, but I'm not Neelu Srivastava. Sorry. Oh. Neelu ji? That is another Neelu. That Neelu. Lina, Hanji. do you have to let her in because she is waiting Yes. outside? Yes, Just let yes, her of in. course. Yes, of course. Yeah. Somehow her this thing has gone on. It's saying the somebody has to let her in. Waiting में जा रहा है, आना तो नहीं चाहिए, waiting room में Waiting में जा रहा है. That's why she called me up. अच्छा, let me check because we have normally not enabled the waiting room and I just see it. Let me check. Just a moment. Nita, she's trying. Hello. Nilu, she's trying. Yeah. She's trying. Earlier she was there, तो मुझे Yeah, she लगा, was there, but somehow she got disconnected. Now she's trying and saying waiting outside. और she's saying she's coming waiting outside, but हमारा तो waiting room enabled नहीं है. अभी तक तो वो इधर ही थी, मेरे को दिख रही थी. She was waiting. All of a sudden वो नहीं, हमारी टेक्निकल टीम से बात होगी. there is no waiting room as such. हमारा तो ओपन है सभी के लिए to enter. I really wonder क्योंकि पहले उन्होंने किया था लॉगिन. उनसे कहिए एक बार फिर से कोशिश करके देखिए. Just 1 minute. It's saying unable to connect. रेणु जी आप करवा दो, बहुत अच्छी करवा दो. एक बार ही उनको बोलो ready डिस्कनेक्ट for करके it. पूरा फिर से उसमें डालें. नीलू, Can anybody request मतलब मुझे नंबर देंगे तो मैं नीलू जी से बात कर लेती हूँ. Maybe no, I'm talking to her. She's with me on the phone. आप बोल दो लीना, आप बोल दो. मैं नीलू जी से बात कर लेती हूँ. Can somebody share her number? नीलू जी, hi. She's on the phone. अच्छा. नीलू जी. Yes, Nita. आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? वेटिंग रूम में दिखा रहे हैं आपको लॉगिन करते वक्त? अभी दिखा रहे हैं. I was logged out. It happened suddenly. It happened for the first time, and now it is showing cannot sign in. Please check your network connection. हाँ, so it is a problem probably with your network connection because यहाँ से हमने कोई वेटिंग रूम अनेबल नहीं किया हुआ है. आप एक बार ही लॉग आउट करके दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा आईडी पासवर्ड डालने की कोशिश कीजिए. होपफुली इट शुड बी डन बाय नाउ. हाँ, so we have to do this meditation. Shall we do? Yes. Please आप लॉगिन कीजिए. We all are waiting for you. Yeah, we are waiting for you. आराम से, don't get hassled. आराम से करो. Yeah, don't get nervous. Okay. Yeah. Okay.
Hello. I think she's facing some internet connectivity issue because मेरी IT से भी दोबारा बात हुई है. So at our end, everything is okay. I mean, there's no waiting room. There is no internet connectivity issue with our systems. So जाने दो शशि जी, कोई बात नहीं, जाने दो. I think we can have the meditation. नेक्स्ट टाइम में उनको ले लेना, उसको मेडिटेशन में नेक्स्ट टाइम में ले लेना. चलो जाने दो. कोई बात हुई उनसे दोबारा? लीना, मेरी बात हो गई है. She is not being able to connect. Let's close it. All right. हाँ बोरा जी आप अपने उसमें ले लेना. बोरा जी नेक्स्ट टाइम ले लेंगे उनको. शशि जी वेरी गुड प्रोग्राम. शशि जी वेरी गुड प्रोग्राम. Rita ji, I hope you all enjoyed it as much as we enjoyed listening to all of you. शशि जी very nicely hosted, very nice. अच्छा, मैं लास्ट एक 4 लाइनें बोल दूं. एक बुल्ले शाह की काफी बोल दूं मैं 4 लाइनों में बिफोर वी कंक्लूड. रब दी रजा विच तू रहना बंदा सिख ले, हर समय उसदा शुक्र मनाना सिख ले, शाम और सवेरे बस उसी दे गुण गाई जा, उसने जो दिता उसदा शुक्र मनाई जा. Okay, with these words, very nice, very nice, very nice, very nice. Well managed and very well. Wonderful. Now, thank you so much, all the participants as well as the बहुत अच्छा लगा, सभी को धन्यवाद. नमस्कार. Relax. For making this a success. Thank you, Nina, for bearing with us. Yes. No, I mean, I'm feeling a little embarrassed now because, everybody was asking for enough time and I was rushing for it. I really apologize. So our intention is not to, interrupt anybody or to cut short the show. Yeah. It's just that we also go as per instructions, but we will definitely look into that for all the sessions like for the club final thing, then you have to give a little leverage. Yeah, I'll be taking care of that. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Lina. Thank you, everyone. Thank you, Lina. Sorry. Thank you. Ritu, आगे शांत रहो तुम. Ritu ji, we had given time to everybody along with the names, 7 minutes, 5 minutes, but if they're short up, I completely understand. I can't be blamed for that, it just happened. They just so next time से हम थोड़ा सा जो भी टाइम देंगे उसमें 10 minutes extra रखे, 10 to 15 minutes extra रखिएगा, क्योंकि हमेशा वो होता है, but not a problem at all. I was hearing part of it and all that, but beautiful, things that everybody spoke about and the gratitude that we must have for all that we get. I know we all go through problems, but ultimately, we have to be grateful to God for what all He's given us. And small things make all the difference in the world, which we, tend to ignore in life as such. So I think some were very emotional stories also, something which, like none of us knew. And it's difficult to talk about all these issues on a, on a public forum as such, but yet, thank you everyone for, sharing everything about your lives and talking about things. I'm not going to take much time. I know we're extremely late today, but thank you so much, Shashi ji, for a beautiful and wonderful program, and to everyone who was a part of it. Part of it, participants, yeah, very true. It's beautiful and really very nicely done. And in fact, I'm so I should actually be very grateful that, if we had just given this theme of community as such, and we started these clubs, and each and every one of you has taken it up so beautifully and, gone into the depth of it. You all are meeting regularly. We see new people coming in, new additions happening, and you all becoming closer, getting to know different people more and more. So, and that has been the aim, and we're really, really happy to see all that happening. So really a big thank you from all of us here for, taking it into the right direction as we had envisioned it as such. And that was the whole aim basically. So thank you once again. And before I end this, I also need to announce the next moderator for the next session. Shiv Bora. Okay, absolutely. Yes, Mr. Bora. Yeah. So Mr. Bora, of course,
Last time he had said no, but then he had called me up. So this time we are giving it to Mr. Bora. So the Bollywood Club is with Mr. Bhamri, the Spiritual Club, Mr. Bora, and the Education Club is with Mrs. Nandita Dasgupta. Absolutely, Miss Nandita, bilkul. Right? And Rituji, Hanji. also announced the meeting of first Bollywood meeting is on 29th, 3:30. Right. So Mr. Bhamri has already announced it that the first Bollywood community meeting for this session. Mr. Bhamri being the moderator is going to be on 29th at 3:30. And whoever the moderators, please let me know the time, whenever you want to fix a meeting. And we have said one meeting is compulsory, but if you want to have 2 meetings, we are more than happy to organize it for you. You want to have more than 2? Again, more than happy to do it. So just let us know the timing. Right? So, Rituji, sorry for overshooting the time, Not at all. Not at all. Because in spite of giving the timing, still we were a little completely and it was Shashi ji, but I think किसी ने शायद time realize नहीं करा होगा जिस तरह से जो लोग बोल रहे थे that किसी को शायद ये ना लगा होगा कि हम लोग यहाँ पर महिमा जी, can I request you to mute yourself please? I had muted. That's it. Right. हमारा meditation session तो रह ही गया, session तो हुआ ही नहीं because 15 minutes. अभी नीलू जी से भी अभी भी उन्होंने मुझसे भी share किया. She is unable to connect. Okay, that's okay. Fine. Yeah. So कोई बात नहीं. Next time we'll get Neelu ji to do that. Right. Correct. Right? Correct. Right. So thank you so much everyone, and thank you Shashi ji. Thank you the whole team. Thanks Ritu ji for giving us such a nice platform. For giving us. मैं एक चीज बहुत एडमायर करती हूँ सब में. मैं जब भी किसी को कहती हूँ अच्छा आप मॉडरेटर बन जाइए, देयर इज इंस्टेंट दिस थिंग एंड देयर इज सो मच ऑफ हम्बलनेस इन दिस थिंग कि हम तो नहीं शायद कर पाएंगे जबकि आप लोगों को एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है. एंड बट दैट फर्स्ट थिंग इज हम नहीं कर पाएंगे, बट व्हेन यू डू इट इट इज सो ब्यूटीफुली डन एंड एवरीथिंग. बट credit goes to you Neetu ji for giving us that confidence कि नहीं आप कर लोगे, आप कर लेंगे. उम्मीद ना रखना. बट रितु मैम may I request you, मुझे मत देना मॉडरेटर का काम. I can participate in Mr. Bora's group spiritual वाला, बट मुझे मत कहना. मैं आपको नहीं कहना चाहती, प्लीज. It's my request. मैं नहीं बोलूंगी, कोई और प्लीज बना देना संध्या जी को. नहीं, प्लीज. It's my humble request to you, ma'am. Please. बाकी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ. बहुत अच्छा करोगे संध्या जी. नहीं, मैं पार्टिसिपेट करूंगी जरूर से. नहीं आप मॉडरेटर हो नेक्स्ट. नहीं मेरे मॉडरेटर परवीन जी. ना मैं तो सुनने वाला बंदा हूँ. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. तो संध्या जी नेक्स्ट डन. मिसेस भामरी का भी यही था, मैंने नहीं करना तो नीता जी ने कह के इनको मोटिवेट कर दिया. नहीं, आज अच्छा लगा. भामरी जी का पार्टिसिपेशन था ना. मैं भी पार्टिसिपेट कर लूंगी भामरी जी, मिस्टर बोरा जी के, लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ. भामरी जी आपका भी बन गई, बन जाएंगे आप लोग धीरे धीरे. संध्या जी 2 बार पार्टिसिपेट करने के बाद एक्सपीरियंस ले लेंगे, फिर मॉडरेटर बन जाएंगे. तो चलिए लेट्स एंड दिस सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. And we will now meet tomorrow morning at 8 o'clock physiotherapy show, and in the evening we will meet with the dietitian. Afternoon slot I am not very sure if he'll be able to have it because the technical show we're still planning for it as such, and so then I'll see by the evening if we can manage that. So but the other 2 sessions carry on as usual. So see you all tomorrow morning at 8 o'clock. नीतू जी आपके हमारे टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. The Zoom was perfectly operational. We were having hang up, इधर नेट चला गया या किसी का कुछ. I was keeping my fingers crossed all throughout. There was no issue at all. शुक्राना. God is with you always. सभी की gratitude था, तो इसीलिए God gave us another opportunity to be grateful. Zoom का शुक्राना.
रितु जी का नहीं फॉर स्टैंडिंग बाय नहीं झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। गाने में इमोहा का, रितु का, जूम का, तीनों का शुक्राना रखेंगे। सबसे ज्यादा आप लोगों का शुक्राना, हम सब तो बिल्कुल साइड पे, and I think all the positive energy here really makes everything flow in the right direction. साइड पे आप तो बिल्कुल सेंटर में हो इस समय हमारे। क्या Thank you so much. Now I'm not going to take much of the time. So bye. रितु जी जब तक आपसे ना थोड़ी सी वो ना करे ना मजा नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल। No matter where I'm busy, मैं भी दौड़ के वापस आती हूँ। Literally से आज मेरी मीटिंग चल रही थी and वो खत्म ही नहीं हुई, and it's a very very important meeting and I was taking the training also. So then 5 o'clock I said, okay, can somebody take over for 10-15 minutes so that I can at least go and start and say hello to everyone. So मजा आता है आपके साथ। तो जैसे ही आप आए तो मेरे मुंह से यही निकला, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से दिल बहलता है मेरा। और एक चीज इसमें बहुत अच्छी हुई, जो डिले हुआ ये प्रोग्राम, ये भी बहुत अच्छी। रितु जी आ गए, आप आए इसमें, अगर पहले ही खत्म कर देते यहाँ पर देख क्या नहीं हो, मेरे दूसरे मोबाइल पे ये मीटिंग ऑन थी, लैपटॉप पे मैंने दूसरी मीटिंग अपनी ऑन कर रही थी और मैं देख, मम्मी भी मुझे वहां से कह रही, बेटा खत्म हो रहा है। मैं कहा हाँ मम्मा मैं सुन रही हूँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन पर हम तो आपको नहीं देख रहे थे ना, इसलिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Everybody, Ritu ma'am, we have just received a message from में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो। सबको इतने बढ़िया। नीलू जी ने बहुत अच्छी मेडिटेशन तैयार की थी, तो वो अब हम शिव बोरा जी का जब होगा प्रोग्राम तो वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड टू नीलू रैली प्रिपेयर्ड आया है। कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। शी इज रीना जी कुछ बोल रही है, सुन लो। Neelu ji has just shared her voice message with me, saying that it's the very first time she has faced such technical issue, but we have conveyed that we will be including her meditation session for the next meeting, and we have conveyed. And बिल्कुल, इसमें भी कोई भलाई होगी जरूर से। We were already running out of time, तो चलो ये भी अच्छा ही हुआ। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए end on शुक्रिया before we go on more. And be safe, keep smiling, and be grateful to God for everything that we have. Thank you very much. Thank you. Okay, good night. Thank you, Ritu. Good night. Good night, everyone.